Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 5ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਉ ਪੜ੍ਹਨਾਉ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਲਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਿਆ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਬ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਟੈਂਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਿਰਿਆ। ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਖੇਡਣਾ, ਦੌੜਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਖਾਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਆਦਿ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਵਰਬ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਰਿਆ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਬ ਹੈ। ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਸਣਾ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਣਾ ਵਰਬ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਮੰਮੀ ਦਾ। ਮੰਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਤਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਰਿਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਹਿਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟਿਵ ਤੇ ਇਨਟ੍ਰਾਂਸਿਟਿਵ ਵਰਬ। ਤੇ ਸਹਿਕਰਮਕ ਤੇ ਅਕਰਮਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ?
ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਵਰਬ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। अब मुंडा है, मुंडा भज रहा है, दौड़ रहा है या भज रहा है, ठीक है ना। तो भजना की है? भजना साडी वर्ब है, क्रिया है। भजना की है साडी? भजना साडी वर्ब है, यानी कि क्रिया है। तो मुंडा की है? मुंडा साडा करता है। इस विच ते यह भी अकर्मक क्रिया है। इस विच कर्म किते भी नहीं है। मुंडा भज रहा है, किस विच? मैदान विच भज रहा है, ट्रैक विच भज रहा है, रोड ते भज रहा है, कित्थे भज रहा है। पखा चलदा है, पखा की है साडा? करता है। चलना की है? चलना एक साडी, दोबारा फिर तो दस रहा, वर्ब है। तो पखा की है? पखा साडा अकर्मक क्रिया विच आया, क्योंकि पखे दे नाल कोई भी कर्म नहीं है, करता है पखा। इन्हां वाकां विच मोहन, मुंडा ते पखा तिन्ने गा रहा है, भजदा है, चलदा है, साडी वर्ब ने, ते ये साडे सारे सारे की ने? सबजैक्ट ने, यानी कि करता ने। जिस विच कल्ला करता होवे, कर्म ना होवे, उसनूं अकर्मक क्रिया कहा जाता है। हिंदी में भी इसनूं अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में थोड़ा दस्या मैं इनट्रांसिटिव ते ट्रांसिटिव वर्ब्स होंगे ने। चलिए नैक्सट चलते हैं असी। हुण आ गया सकर्मक क्रिया। अकर्मक बारे पता लग गया, जिस विच करता होवे, कर्म ना होवे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया की है? जदों वाक विच करता ते कर्म दोवें होण, उसनूं सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस विच करता ते कर्म दोवें होण, उहनूं सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिवें मोहन गीत गा रहा है, देखो पहले विच की है? मोहन गा रहा है, की गा रहा है पता नहीं सी। इस विच की है? मोहन गीत गा रहा है। तो मोहन, मोहन साडा करता हो गया, तो साडा कर्म की हो गया? मोहन दा कर्म की है? गीत, सॉन्ग। मोहन दा जिहड़ा कर्म है वो सॉन्ग है, गाउणा उसका की है? क्रिया है, गाना उसकी वर्ब है। समझ गए। उस तो बाद मुंडा फुटबॉल खेलता है, उस विच किसी का? मुंडा खेडदा है, ये नहीं पता भी की खेडदा है, दौड़दा है, खेडदा है, जो भी। तो इस विच की है? मुंडा फुटबॉल खेडदा है। तब मुंडा साडा सब्जैक्ट हो गया, करता हो गया। फुटबॉल की है? उसका कम हो गया, कि फुटबॉल कर्म हो गया। तो खेडना की है? साडी वर्ब हो गई। रजिंदर रोटी खांदा है, रजिंदर साडा सब्जैक्ट हो गया, तो रोटी है उसका कर्म हो गया, खाना की है? उसकी वर्ब हो गई। तब तुहानूं मैं पहले दस्सिया सीगा कि जिहड़ा साडा मान लो इंग्लिश में अगर देखिए ना, तो देखो इंग्लिश तो हिंदी पंजाबी विच मान लो दस रहा मैं, ताकि जो पंजाबी घट समझते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट साडे कोल एक वारी आउंदी है, बहुत सारे कैंडिडेट दसदे ने कि सानूं पंजाबी पढ़न विच या पंजाबी लिखण विच बड़ी दिक्कत आउंदी है, समझण विच दिक्कत आउंदी है। तो इंग्लिश ते पंजाबी नूं कोरिलेट करके जो तुसीं दसदे हो, थोड़ा जिहा उसनूं मतलब समझाउण विच बच्चे दे तक, उस कैंडिडेट तक समझण विच बड़ी आसानी रहिंदी है। तुहानूं पता है कि साडा सब्जैक्ट, वर्ब ते ऑब्जैक्ट, ये साडा स्ट्रक्चर है सेंटेंस दा। ये सब तो पहला सब्जैक्ट आउंदा है, उस तो बाद वर्ब है, उस तो बाद ऑब्जैक्ट है। पंजाबी विच या हिंदी विच अलग है, पहले करता, फिर कर्म, फिर क्रिया आती है। तो इस विच की है? इस विच पहला की है? पहला करता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, ठीक है ना। तो मेन मेरा मैं कहने का मतलब सी कि ये जिहड़ा स्ट्रक्चर है ना, इसनूं ध्यान रखिया जाए, तो सानूं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, काल या विशेषण, इन्हां विच समझण विच कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसना इन्होंने डिटेल भी दे रखी है कि इन्हां वाकां विच जिहड़ा मोहन है, मुंडा है, रजिंदर है, ये सारे की ने? करता ने। ओके, ये सारे की ने? करता ने, सब्जैक्ट ने, नाउन ने। उस तो बाद गीत, फुटबॉल, रोटी, ये सारे साडे की ने? कर्म ने। तो जिहड़ा गाउणा है, खेडना है, खाना है, ये साडियां सकर्मक क्रियावां ने। सकर्मक क्रियावां क्यों ने? क्योंकि करता दे नाल नाल कर्म भी है। अगर कर्म ना होवे
ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ। ਪਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਲ, आज और कल। ਇਹ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ आज ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆने ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਨ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਅਮਨ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਮਨ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਨ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ यानी कि वो फ्यूचर है, फ्यूचर विच यानी कि टाइम उस तो बाद जिहड़ा इस तो बाद जो भी टाइम आएगा उस विच वो रोटी खावेगा। इन्हां वाकां विच जिहड़ा खांदा है, खाधी या खावेगा, ये सारे शब्द किरिया ने ते जिस टाइम बारे दस रहे ने वो काल है। ते काल कितने प्रकार का हो गया, काल तीन प्रकार के। क्वेश्चन की बनता, सब तो पहला तो की बनता है कि काल है कि, दूसरा कि काल के प्रकार कितने ने। सब तो पहला दस्या तुहानूं मैं भूतकाल, भूतकाल नूं इंग्लिश में कहते हैं फास्ट, पास्ट इंग्लिश में कहते हैं पास्ट। ते जिहड़ा पंजाबी विच इंग्लिश हिंदी विच की कहते हैं, हिंदी विच भूतकाल। ओके, वर्तमान काल, हिंदी में तो इसको वर्तमान काल ही बोलेंगे, ते पर इंग्लिश च इसनूं की कहते हैं प्रेजेंट। भविष्य काल, हिंदी में इसको बोलेंगे भविष्य काल और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, टेंसा बारे, समय बारे, काल बारे तुहानूं सब पता ही है। अगे इसके असीं टाइप अगे इसका देखते हैं कि भूतकाल की है, जदों किरिया बीते समय वाल इशारा करते हैं। कहने का मतलब जदों कोई भी किरिया अजिहे टाइम बारे दस्या होवे, अजिहे टाइम बारे इशारा करती है, अजिहे टाइम बारे दसदी है जो कम हो चुकिया है, इस तो पहला हो गया है, कंप्लीट खत्म हो गया है, उसनूं असी भूतकाल कहने हैं। जिमें अमन ने रोटी खाधी, अमन ने रोटी खा ली है, इसका मतलब ये भूतकाल है। इस वाक में जी किरिया है वो बीत चुकी है, इस मतलब ये भूतकाल की किरिया है। मैं कल सप देखा। ठीक है, मैं कल सप देखा, तो मैं की है, मैं कल देखा सीगा, इसनूं देखा सीगा, सप देखा, यानी कि निकल गया टाइम। ठीक है, रमेश कल बाजार गया, यानी बाजार कदों गया सीगा, बाजार कल गया सीगा,
गल गया से इस मतलब वो भूतकाल विच जिहड़ी क्रिया है उस खत्म हो चुकी है। अगे चलते हैं दूसरा बल, दूसरा है साडा वर्तमान काल। वर्तमान काल विच की है, जदों क्रिया चल रहे समय मौजूद जिहड़ा समय है उस वाल इशारा करे तो उसनूं वर्तमान काल कहा जाता है। भाव यह है कि जिहड़ी एट प्रेजेंट मौके ते जिहड़ी घटना हो रही है उसनूं वर्तमान काल कहंदे हन। रोहन फुटबॉल खेड रहा है। इसका मतलब की है कि रोहन जो सामने फुटबॉल खेल रहा है तो मैं उसनूं देख रहा हाँ। ठीक है, देख रहा हाँ यानी कि मेरे सामने सारी एट प्रेजेंट जिहड़ी क्रिया है वो चल रही है, वो कम हो रहा है, उसनूं की है वर्तमान काल कहा जाऊगा। ठीक है ना। मैं कम कर रहा हाँ, मैं कम कर रहा हाँ, कोई भी कम है मैं एट प्रेजेंट हुणे कर रहा हाँ, जिवें मैं पढ़ा रहा हाँ। ठीक है ना, मैं हुण पढ़ा रहा हाँ, मैं हुण लैक्चर लै रहा हाँ, मैं समझा रहा हाँ। इसका मतलब हुण मौके ते ये कम हो रहे ने, इसका मतलब ये वर्तमान काल है। अमन रोटी खांदा है, इसका मतलब की है हुण एट प्रेजेंट वो खा रहा है। इस वाक विच जिहड़ी क्रिया है वो मौजूदा समय बारे दस रही है, इस करके ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल नूं इंग्लिश च कहंदे ने प्रेजेंट। नैक्सट है भविख काल। जदों क्रिया आने वाले समय वाल इशारा करे, यानी कि अजिहा समा दसे जिस विच आने वाले टाइम विच कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई कम, कोई ना कोई क्रिया होनी है या कोई कम शुरू होना है, उस वाल इशारा करे, उस वाल इशारा करे तो उसनूं भविख काल कहा जाता है। जिवें अमन रोटी खावेगा तो ये जिहड़ा फ्यूचर की गल करती इसने कि अमन रोटी खावेगा, तो अमन रोटी खाएगा की है फ्यूचर टेंस हो गया, है भविख काल हो गया। इस भाग में आने वाले टाइम का जिक्र किया है तो भविख काल है। कल साडे पिंड विच डीसी ने आना है, यानी कि कल साडे पिंड विच डीसी ने आना है, तो इसका मतलब की हो गया कि पिंड विच कल डीसी आऊगा, यानी आने वाले टाइम का जिक्र किया गया है। ठीक है, कल मैं दिल्ली जावांगा, कल मैं दिल्ली जावांगा, तक आने वाले टाइम का जिक्र किया है कि मेरा दिल्ली जाने का जो टाइम हो कि आने वाला है, इस तो नैक्सट डे कल आऊँ जो अगला दिन आने वाला दिन है ना उस दिन जाऊँगा, तो इसका मतलब की है ये साडे भविख काल बारे जिक्र किया गया है। यानी जोड़ा टाइम जदों कोई एक्शन या जदों कोई क्रिया या जदों कोई काम आने वाले टाइम आने वाले समय होना निश्चित होवे उसनूं भविख काल कहा जाता है। जिहड़ा मौके ते चल रहा है उसनूं वर्तमान काल कहा जाता है, तो जिहड़ा इस तो पहला हो चुका उसनूं भूतकाल कहा जाता है। तो ये साडे अज दे हो गए काल, तो असीं क्रिया बारे पढ़िया ते काल बारे पढ़िया। इस तो बाद असीं शुरू करते हैं विशेषण। विशेषण नूं इंग्लिश विच एडजैक्टिव कहा जाता है। विशेषण नूं की कहा जाता है इंग्लिश विच एडजैक्टिव कहा जाता है। विशेषण तो ही पता चलता है, सानू नाम तो ही पता चल रहा है कि विशेष, कोई चीज़ विशेष होना, कोई भी चीज़ विशेष जो होंगी है उत्थे विशेषण लगाया जाता है। इसकी परिभाषा तो सानू पता लगता है कि जिहड़े शब्द नाम या पड़नाउन, कहने का मतलब सानू नाउन या प्रोनाउन नाल आके उसकी विशेषता दसे, जिन्हें मैं पहला शुरू किया था कि कोई चीज़ विशेष होना, जो उन्होंने विशेषता दसदी है ना तो उन्होंने विशेषण कहा जाता है। नाउन या प्रोनाउन है उन्होंने जो विशेषता दसे जोड़े शब्द वो विशेषण कहे जाते हैं। इंग्लिश में भी असीं पढ़ते एडजैक्टिव, जिवें क्वांटिटेटिव एग्जैक्टिव हो गया, नंबर एग्जैक्टिव हो गए, डेमोस्ट्रेटिव एग्जैक्टिव हो गए, इंटैरोगेटिव एग्जैक्टिव हो गए। उसी तरीके नाल जिहड़े आह पंजाबी विच है, पंजाबी विच भी 5 प्रकार के विशेषण सानू मिलते हैं। चलो इस बारे भी अगे चर्चा करांगे। तो सब तो पहला एक दो एग्जाम्पल देखते हैं असीं कि सुशील गोरा है। हुण इस विच की है, सुशील जिहड़ा है ना वो करता है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਕਰਮਕ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਇੱਥੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਬ है ना ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है यानी खासियत किस दी दस रहा है, विशेषता किस दी दस रहा है, ये सुशील की विशेषता दस रहा है। यानी कि करता दी जो विशेषता दसे तो वो शब्द की होंगे ने, वो एडजेक्टिव होंगे ने, वो की होंगे ने, वो विशेषण अखवाउंदे ने, विशेषण कहा जाता है उन्होंने। सेब ताजे हैं। हुण सेब है, सेब की क्वालिटी की है, सेब का जी विशेषता है वो की है, वो ताजे ने। ताज महल बहुत सोहना है। इमारत है कोई एक, ताज महल है। ताज महल साडा इत्थे की है, साडा नाउन है, करता है। ते बहुत सोहना जिहड़ा शब्द है वो की है, साडा इत्थे एडजैक्टिव का काम करता है, यानी कि विशेषण का काम कर रहा है। इन्हां वाकां विच जिहड़ा गोरा है, ताजे है, सोहना है, ये सारे शब्द की है, ये एडजैक्टिव ने। एडजैक्टिव साडे तुहानूं पहले दस्सिया मैं कि साडे 5 प्रकार के एडजैक्टिव ने। जिस तरीके नाल इंग्लिश विच इंटैरोगेटिव एडजैक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजैक्टिव या क्वांटिटेटिव एडजैक्टिव है, उस तरीके नाल ये भी साडे पंजाबी विच 5 प्रकार के एडजैक्टिव ने। हिंदी विच भी गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, कई विशेषण ने, उस तरीके नाल इस विच भी है। तो सब तो पहला की है साडा गुणवाचक विशेषण, उस तो बाद की है संख्यकवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण विच की है किसी के गुण अवगुण, यानी कि उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताया जाता है। यानी मेरिट्स ते डीमेरिट के बारे दस्या जाता है कि उसके गुण की ने, उसके अवगुण की ने, मतलब उसदी चंगियां खासियतां की ने, उसदी मतलब ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मतलब माड़ियां गल्लां की ने। ये सब किसी भी चीज़ बारे या किसी भी नाउन बारे, किसी भी कर्ता बारे, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। जिस तरीके से सेब है, सेब ताजे ने, तो सेब एक कोई चीज़ है। सुशील एक मतलब लड़का है, सुशील एक नाउन है, करता है। परिमाणवाचक विशेषण हो गए, निश्चयवाचक विशेषण हो गए, तो परिणामी विशेषण हो गए। तो सब तो पहला असीं करते हैं गुणवाचक विशेषण बारे चर्चा। ਜਿਹੜੇ शब्द किसी नाम या पड़नाम नाल आके उसके गुण बारे, सब तो वड्डी गल, सब तो जी मतलब पॉइंट नोट करने वाली गल है कि किसी के गुण या अवगुण, मेरा मतलब कहना सी किसी की गुड हैबिट्स या बैड हैबिट्स, यानी कहना मतलब किसी की मैरिट्स या डीमेरिट्स बारे अगर दसदा है, ठीक है, उसनों गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गोरा मुंडा, सुंदर इमारत। हुण मुंडा की है, मुंडा गोरा है, तो इसका मतलब की है जिहड़ा गोरा है वो इस मुंडे की विशेषता दस रहा है, जिहड़ा सुंदर है, सुंदरता है, वो इमारत की विशेषता दस रहा है। ओके, जिवें मन के चलो किसी बारी गल कर लो कि विराट कोहली बहुत चंगा खिलाड़ी है, ठीक है। अगर इसके विराट कोहली बहुत चंगा खिडारी है, तो विराट कोहली की विशेषता की है कि वो चंगा खेलता है, खिडारी बहुत चंगा है। तो बहुत चंगा जो शब्द है ना, वो की है, उसकी विशेषता है, इसते विशेषण के तौर पर वरत्या गया है। चिट्टा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। चिट्टा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है ना। तो जो चिट्टा शब्द है, घोड़े की विशेषता की एक तो वो चिट्टा है, उसका कलर है, उसका कलर की है चिट्टा है, जो दूजा तेज बहुत दौड़ता है। तो सारी ये की है, ये उसकी विशेषता है, उसके गुण ने। ओके, नैक्सट चलते हैं। नैक्सट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो पता लगता सानू कि किसी जिहड़ा शब्द किसी नाम या पड़नाम की संख्या बारे, भार बारे या गिणती बारे सानू दसदे हैं, उन्होंने संख्यावाचक कहा जाता है। जिवें 7 किताबां, 50 रुपए, 2 मीटर कपड़ा, ये सारे की ने विशेषण ने। कपड़े की विशेषता की है कि वह 2 मीटर का है। रुपए किन्ने ने, वो 50 रुपए ने, 50 रुपए उसकी विशेषता है। रुपए तो बहुत हो सकते, 10 रुपए भी हो सकते, 20 रुपए भी हो सकते, 50 भी हो सकते हैं। तो रुपए जिहड़ा है ना, नोट है, उसकी विशेषता की है कि 50 रुपये का है।
किताबां बहुत हो सकदियां ने, पर किताबां की विशेषता की है कि 7 किताबां ने, ठीक है ना, 1 2 3 4 करके 7 किताबां ने। मेरे कोल 4 कबूतर हन। तो कबूतर की है, कबूतर की विशेषता की है कि वो 4 ने, कबूतर की विशेषता की है कि वो 4 है, ठीक है। तो 4 शब्द की है वो विशेषणता दसदे है किस दी, कबूतरां की विशेषता दस रहे हैं। ओके, मेरे कोल बहुत, सॉरी, मेरे कोल 4 गड्डियां हन। तो गड्डियां की विशेषता की ने कि वो 4 हन। मेरे कोल 100 रुपए का नोट है। तो नोट है जो 100 रुपए हैं, तो रुपए की क्वालिटी की है, रुपए की जी विशेषता वो की है वो 100 रुपए का है। मेरे कोल 10 मीटर कपड़ा है या 5 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा है, तो उसका की है, कपड़े की क्वालिटी की है 5 मीटर या 10 मीटर इसका है। ओके, नैक्सट देखो, नैक्सट है परिमाणवाचक विशेषण। ਜਿਹੜਾ शब्द किसी नाम या पड़नाम की मिणती बारे, माप बारे या तोल बारे दसे। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਤੋਲੇ ਮਿਣ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ, ठीक है ना, तो जी भारी चीज़ है वो की है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। थोड़ा पानी, पानी की है, पानी बहुत ज़्यादा थोड़ा है, ठीक है, बहुत थोड़ा है। कम की है, काफ़ी कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो ਜਿਹੜੇ बहुत शब्द है, भारा शब्द है, थोड़ा शब्द है, काफ़ी शब्द है, ये सारे परिमाणवाचक विशेषण हैं। मेरे कोल काफ़ी समा है। इस समय की एडजैक्टिव होगी थी, समय की विशेषता की है कि वो काफ़ी है, जो मेरे को टाइम है वो काफ़ी है। तो काफ़ी शब्द की है इतने विशेषता है, इसनों असी मापिया है कि इसनों मतलब इसकी साढ़े को जो टाइम की मतलब क्वांटिटी है ना, मतलब क्वांटिटी का मतलब कहने का भाव है कि साढ़े को टाइम बहुत है, तो इसकी विशेषता की होगी, काफ़ी शब्द विशेषता होगी। उस तो अगे नैक्सट चलते हैं, निश्चयवाचक। ਜਿਹੜਾ शब्द किसी नाम या पड़नाम के निश्चयपूर्वक इशारा करते, निश्चयपूर्वक का इशारा मतलब उस वाल इंडीकेट करते हैं, किसी वाल इंडीकेशन करके उसनों पॉइंट आउट किया जाता है। सपोज करो ये किताब है, इत्थे मैं खड़ा हाँ, मैं इशारा करके कहा कि एक किताब मेरी है। मैं इशारा किया इस किताब वाल, तो एक किताब मेरी है, तो इस किताब वाल मैं पॉइंट किया, इसनों इंडीकेट किया, इस वाल मैं पॉइंट किया है कि ये किताब मेरी है। किताब की है, किताब एक नाउन है, करता है, तो किताब की है, ये मेरी है, तो मेरी जो शब्द है वो की है, वो निश्चयवाचक विशेषण ने, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ राम सिंह का है, कुछ भी कह सकते हैं, ये मुंडा कपूर सिंह का है, ये मुंडा राम सिंह का है। तो मुंडे वाल इशारा करके दसिया गया कि उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी की है, उसनों एक खास बना दिता गया कि खास है। मुंडे बहुत सारे ने, पर यह मुंडा की है, ये मुंडा कपूर सिंह का है। ताकि ये शब्द जोड़ा है ये की है, ये निश्चयवाचक विशेषण है। ओ इमारत बहुत बड़ी है, इमारत बहुत सारिया ने, इमारत की ने, इमारत बहुत सारिया इमारत ने, ठीक है। पर जी इस अगर इस खास किसी इमारत वाल अगर इशारा करके कहा जाता है कि वो इमारत बहुत बड़ी है, तो ये इमारत की है, इमारत की विशेषता की है कि ओ
ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੜਨਾਮ, ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜਦ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਨਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮੁੰਡਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ठीक है। जो है, मैं, मेरा, ये सारे की ने, ये सारे पड़नामी विशेषण ने। मैं, मेरा, मैनू, ओ, ओदा, तू, तुसी, ये सारे की ने, ये पड़नाम ने। पर एक ही है जदों किसी नाल नाम नाल लग के विशेषण का काम करते होण तां पड़नामी विशेषण बन जाते हैं। जिवें कि मुंडा है, जो मुंडा, हुण मुंडे की विशेषता की है, जो, मतलब वो उस ये सारे मिल के ये जो जिहड़ा शब्द है वो विशेषण बन गया। जो मतलब किसी खास चीज़ बारे इशारा करता है। मेरा कुर्ता, कुर्ता की है, ये मेरा है, तो ये कुर्ते की एक खासियत होगी। कुर्ते का की हो गया, कुर्ते की विशेषता दस रहा है कि कुर्ता जिहड़ा वो मेरा है। तो मेरा शब्द हो गया, जो शब्द हो गया, ये की हो गए, ये पड़नामी विशेषण हो गए। तो अज का सारा टॉपिक इत्थे ही खत्म होंदा है। अज के टॉपिक विच असीं की पढ़िया है, एक बार फिर तो रिवीजन कर दिंदे हां। सब तो पहला असीं किरिया बारे पढ़िया। किरिया किन्ने प्रकार दियां ने? 2 प्रकार दियां ने। किरिया हुंदी की है, एकर्मक ते सहकर्मक किरिया की है। उस तो बाद एकर्मक किरिया विच की चीज़ हुंदियां ने? कल्ला करता हुंदा है, करता होवे, कर्म ना होवे, एकर्मक किरिया है। दूसरा सहकर्मक किरिया, वाक विच करता कर्म दोवें होण, उसनूं सहकर्मक किरिया कहा जाता है। उस तो बाद असीं काल कीता। काल 3 प्रकार दे ने, पास्ट, प्रेजेंट ते फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल ते भविख काल। भूतकाल जिहड़ा टाइम बीत गया वो भूतकाल है, जिहड़ा चल रहा है वो वर्तमान काल है, ते जिहड़ा अगे आउण वाला टाइम है वो भविख काल है। उस तो बाद विशेषण बारे च पढ़िया सी। विशेषण की है कि जदों कोई शब्द किसी की विशेषता दसदे है, कोई नाम या पड़नाउन की, जिहड़े शब्द नाम या पड़नाउन की, नाउन या प्रोनाउन की, या नाम या पड़नाउन की करता की विशेषता दसदे ने, वो शब्द विशेषण होंदे ने। विशेषण किन्ने प्रकार दे ने? 5 प्रकार दे ने। गुणवाचक, किसी दे बारे गुण या अवगुण, मैरिट्स या डीमेरिट्स बारे दसन। संख्यावाचक, जदों किसी का भार, संख्या या गिणती बारे दसे तो संख्यावाचक विशेषण है। परिणाम मानवाचक विशेषण, जदों मिणती, तोल या माप बारे दसते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण होंदे ने। निश्चयवाचक विशेषण, जदों किसी खास चीज़, किसी चीज़ वाल इशारा करके उसनूं खास बना दिता जाता है तो उसनूं निश्चयवाचक परिणाम कहा जाता है। पड़नामी विशेषण, जदों कोई पड़नाम नाम नाल लग के विशेषण का काम करन तो उसनूं पड़नामी विशेषण कहा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पंजाबी वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सबसक्राइब, ते बैल आइकॉन ते बटन दबाउणा ही ना भुलना, क्योंकि होर भी असी इंटरस्टिंग तो इंटरस्टिंग वीडियो लैके आ रहे हैं। इस दे नाल नाल साडा जिहड़ा कोटिल्या स्टडी जोन का चैनल है उस उपर कंप्यूटर दियाँ, SST दियाँ, जोग्राफी दियाँ, हरियाणा करंट अफेयर दियाँ या हरियाणा GK दियाँ सारियां वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड हो रही ने। तुसीं उन्हां नूं भी देखियो ते अपना जिहड़ा IQ लेवल है उसनूं उस दे विच सुधार करियो। तो कंपटीशन की कोई भी मतलब कंपटीशन च अगर तुसीं जाने हो तो तुहानूं ये सारी चीज़ां जिहड़ी असीं करा रहे हैं बहुत ज़्यादा सहाई होणगीआं ते तुहाडी भविख दी मंगल कामना करदे होए थैंक्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.